Good evening, students. In last lecture, we had discussed about polarity and dipole moment. Now, in this part, we are going to discuss about molecular orbital theory. This is very important, very important part of this chapter. We are discussing very fundamental information of molecular orbital theory here. Molecular orbital theory is very advanced mathematical based theory actually. We just discussing about slight or fundamental part of it here. Before we proceed for molecular orbital theory, which is given was developed by F. Hund and R. S. Mulliken in 1932. Let me discuss about why it is required. Because VVT is very efficient for explanation of various compound, molecules, their structure, right? Many things we can as compared to if we compare VVT from octet rule theory, we can easily understand that with the help of VVT we can explain many things about molecule. We can describe shape of the molecule, we can describe the angles, bond length, many things we can describe with the help of valence bond theory. But molecular orbital theory, why we required molecular orbital theory? This is very important. VVT explain the shape of molecule, geometry of the molecule, bond angles in the molecules, but VVT is unable to explain the stability of molecule, stability of compound, the magnetic nature of molecule, magnetic nature of the compound. Many properties like magnetic properties, stability, we cannot explain with the help of valence bond theory. So describe the stability of molecule, magnetic nature of molecules and other many properties, molecular orbital theory was introduced I can say. And it is slightly, or I can say it is mathematically based theory actually. Mathematical expressions बहुत सारे हैं. Mathematics based the explanations of this theory was given by the scientist, and but it is most advanced I can say, right? So let me discuss what is in molecular orbital theory. Some features are there. The first is as we know in atomic orbital atoms, electrons remains in atomic orbital. एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं? Atomic orbitals में. Similarly in molecular orbitals, electrons remains in molecule. Molecular orbitals. In a molecule, electrons remains in molecular orbital. जैसे atoms में atomic orbitals में रहते हैं, तो molecules में molecular orbitals में electrons रहते हैं. Right? तो molecular orbital कैसे बनते हैं? तो molecular orbitals बनते हैं जब हम atomic orbitals having comparable energies and proper symmetry combine and form molecular orbitals. So atomic orbitals of comparable energies and proper symmetry combine and form molecular orbitals. तो इस तरह से molecular orbitals बनते हैं और molecular orbitals के अंदर electrons रहते हैं. As we know, atomic orbital is monocentric. एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है उसमें न्यूक्लियस एक ही होता है. एटम के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस एक ही होता है. तो एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होते हैं? एक ही न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में होते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं मोनोसेंट्रिक. बट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं पॉलीसेंट्रिक होते हैं. कैसे होते हैं? पॉलीसेंट्रिक होते हैं.
One more important thing, the number of molecular orbital formed is equal to the number of combining atomic orbital. जितने atomic orbital combine होते हैं उतने ही molecular orbitals बनते हैं. ये नहीं कि atomic orbital कम combine हो रहे हैं, molecular orbital ज़्यादा बन रहे हैं, या molecular orbitals ज़्यादा combine हो रहे हैं और atomic orbitals ज़्यादा कम combine हो रहे हैं, molecular orbital ज़्यादा बन रहे हैं. नहीं, जितने atomic orbitals combine होंगे उतने ही molecular orbitals combine होंगे. Right? जैसा it is very much clear, we know very well the electron probability distribution, around a nucleus in an atom given by atomic orbitals. The electronic distribution जो होता है, the three-dimensional orientation of electron, three-dimensional distribution of electron, probability for electronic distribution we know termed as atomic orbitals in atom. But in molecule it is termed as molecular orbitals. All the rules those are used for filling electrons and atomic orbitals are used here. Again the same rules are used for filling electrons and molecular orbitals. One more important features of molecular orbital theory is this: as we know in VVT, the outer valence shell orbitals only participate during bonding. But in MOT, all available orbitals participate during bonding. जैसे कि बहुत आसानी से आपको शायद याद होगा, हमने हाइब्रिडाइजेशन में भी देखा, ओवरलैपिंग में भी देखा कि जो आउटर शेल ऑर्बिटल्स है उनका ही यूज करते हैं. जैसे 1s2, 2s2, 2p2 या 2p5, तो हम अगर फ्लोरीन के लिए ले रहे हैं तो केवल 2p5 का यूज कर रहे हैं, बाकी हमें 1s2, 2s2 से कोई लेना देना नहीं है. ये हमने अभी तक देखा है. लेकिन नाउ इन दिस केस इन MOT ऑल द ऑर्बिटल 1s, 2s, 2p जितने भी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं सभी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में और मिलकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं. सो दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स थ्योरी. कंडीशंस क्या होती, कैसे ऑर्बिटल्स कंबाइन होते हैं? सो कंडीशंस इज वेरी मच क्लियर that combining orbital must have the same or nearly the same energy. एक या तो सेम एनर्जी होनी चाहिए जो कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स है, या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है. जनरली जो डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए हम बात करते हैं तो उनकी एनर्जी सेम वाले ही कंबाइन होते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ केसेस में डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स भी कंबाइन हो सकते हैं. सो नॉर्मली द कंबाइनिंग atomic orbital must have the same energy, but there might be possibility that the different energy orbitals also may combine, right? Combining orbitals, atomic orbital must have the same symmetry उनकी सेम होनी चाहिए. सिमेट्री के बहुत सारी मीनिंग होती है, आप धीरे धीरे पढ़ेंगे, बट जनरल मीनिंग का वही है कि 2p से 2p कंबाइन होगा और 2s से 2s कंबाइन होगा, 1s से 1s कंबाइन होगा, लाइक दिस. S से S कंबाइन होगा, लाइक दिस. बट उसमें भी बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, बट सिमेट्री का जनरल मीनिंग यही होता है. एंड द कंबाइनिंग ऑर्बिटल्स, कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू द मैक्सिमम एक्सटेंट. जो कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी ओवरलैपिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, राइट? अगर मैं आपसे बात करूं फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स दो तरीके के होते हैं जनरली. एक होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स एंड अदर वंस आर कॉल्ड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. और ये फॉर्म कैसे होते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. हाउ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म. द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज एक्सप्लेन्ड बाय LCAO concept which is called linear combination of atomic orbitals. LCAO concept, linear combination of atomic orbitals. As we know, electron is a wave. Electron is a wave. Okay. Then, when overlapping take place, electronic waves superimpose to each other. Electronic waves superimpose to each other. Some electronic waves superimpose to each other, right? We can say electronic waves superimpose to each other, right? So electronic waves
superimposed on each other. During superimposition of electronic waves, or simply superimposition of electronic waves is known as, या superimposition of waves is known as interference. जो waves हैं उनका superimposition ही interference कहलाता है, right? When electronic waves superimpose to each other, at some points they support the waves, and on other points they oppose the waves. The points where they support waves, at the point where both the waves support each other, at that point constructive interference takes place. And at the point where both the waves oppose each other, at those points destructive interference takes place. Remember, I'm again defining what is interference. मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सुपरइम्पोजिशन एक तरह का इंटरफेरेंस है, बिल्कुल सही है, बट देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस इन दी फेज, या मैं कह सकता हूं डिस्टेंस, या एक तरीके से हम फेज, आप धीरे धीरे आगे जाएंगे तो फिजिक्स में ही आप पढ़ेंगे, फेज जो होता है किसी भी दो वेव्स के बीच में, एक फेज का जो डिफरेंस होता है उसको फेज जो है किसी दो वेव्स के जो रनिंग डिफरेंस को दिखाता है। मतलब हम ये कह सकते हैं एक वेव थोड़ी एंगल से आगे चल रही होगी, दूसरी वेव थोड़ी एंगल से पीछे चल रही होगी, राइट? सो व्हेन टू इलेक्ट्रॉनिक वेव्स ट्रेवल इन अ सेम डायरेक्शन बट have some phase difference, in that case at some point both the waves may support each other, on other points may oppose each other. The points at which they support each other is called constructive interference, and at which they oppose each other is called destructive interference. I'm again showing what I want to say कि एक इलेक्ट्रॉनिक वेव, हम जानते हैं कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या है, कहीं ना कहीं एटॉमिक ऑर्बिटल्स कैसे एक्सप्लेन होते हैं, इट इज वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट? एक इलेक्ट्रॉन, या हम बात कर रहे हैं कि एक वेव इस तरीके से जा रहा है, इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, एक ये इलेक्ट्रॉनिक वेव की जा रही है, राइट? और दूसरा वेव यहां से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या दिखेगा, इस पॉइंट पर क्या हो गया, ऐसा ऐसा, और ये हम मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, थोड़ा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि कुछ कंडीशंस ऐसे आएंगी जब वो दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या करेंगे, एक ये वेव है और एक ये वेव है। कुछ कंडीशंस ऐसी आएंगी जब दोनों वेव्स एक दूसरे को क्या करेंगे, ऑपोज करेंगे, और कुछ कंडीशन ऐसे आएंगे जब दोनों वेव्स एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो जहां दोनों वेव एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे वहां उनके वेव फंक्शंस जो हैं वो ऐड हो जाएंगे, और ऐसी कंडीशन में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक वेव एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं तो इस कंडीशन से स्टेबलाइजेशन आता है, और स्टेबलाइजेशन के कारण से उनकी एनर्जी जो है वो कम हो जाती है, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज लेसर देन एनर्जी ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बट जहां वो एक दूसरे को अपोज करते हैं वहां सिस्टम अनस्टेबल हो जाता है, और इस तरह के ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो बनते हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। क्योंकि वो एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली सिस्टम अनस्टेबल हो रहा है, एनर्जी बढ़ रही है, इसलिए एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स से ज्यादा होती है। इसे रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, आप देख सकते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स है साई ए और साई बी, यहां पर ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जा रहा है, और यहां पर एक दूसरे को ऑपोज कर रहे हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जा रहा है। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होती है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, यहां एटॉमिक ऑर्बिटल्स हो गए और यहां पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हो गए, राइट? सो LCAO का जनरल मीनिंग है कि जो या तो इधर देयर इज एडिशन ऑफ वेव फंक्शन और सब्सट्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन, इट ऑल डिपेंड ऑन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ऑफ
electronic waves or atomic orbitals, we can say, right? So this is very important. I think it is very much clear. एक बार और इस बाकी इंटरफेरेंस आप क्लास 11th में ही फिजिक्स में लास्ट चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे। दो वेव जब एक दूसरे के साथ कुछ फेज डिफरेंस पे होते हैं तो कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे को ऑपोज करते हैं और कुछ पॉइंट पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। फेज डिफरेंस के कारण से ऐसा देखने को मिलता है। तो कुछ पॉइंट्स पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। जब इलेक्ट्रॉनिक वेव या एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो भी वेव फंक्शन ही है, तो उस कंडीशन में जब सपोर्ट करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, यानी जो दोनों वेव फंक्शन है इलेक्ट्रॉनिक वेव के वो ऐड हो जाते हैं, और जब वो एक दूसरे को ऑपोज करते हैं तो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, और जो वेव फंक्शंस हैं वो क्या हो जाते हैं, सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिलता है। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कॉम्बिनेशन, अभी तक हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पॉजिटिव कॉम्बिनेशन पे ज्यादा बात की है, चाहे हम ओवरलैपिंग में एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग, पीपी ओवरलैपिंग, एक्सियल, साइड वाइज, वॉटएवर, हमने पॉजिटिव ओवरलैपिंग की बात की हुई है। लेकिन यहां आपको शायद समझ में आएगा कि जहां सब्सट्रैक्शन होता है वो एक तरह की नेगेटिव ओवरलैपिंग होती है, राइट। हियर यू कैन सी इन ए डायग्राम एस एस के मिलने से, पॉजिटिव ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है, उसे हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सिग्मा 1s, और इसमें दोनों प्रॉपरली मिक्स्ड हो रहे हैं, पूरा प्रॉपर पॉजिटिव ओवरलैपिंग हो गया, पॉजिटिव एडिशन हो गया, और इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डेवलप हो गया। बट यू कैन सी हियर 1s दोनों के बीच में जब सब्सट्रैक्शन होता है तो उस कंडीशन में एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में दोनों के बीच में रिपल्सन होता है और दोनों के बीच में एक नोडल प्लेन डेवलप हो जाता है, राइट। दोनों के बीच में एक नोडल प्लेन डेवलप हो जाता है। इसी तरह से अगर हम ये 1s का हो गया, अगर हम 2p देखें तो 2p आप देख सकते हैं, एक्सियल ओवरलैपिंग हमने देखा था, और एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण से प्लस प्लस सामने आया, एक्सियल ओवरलैपिंग हो गया, और एक्सियल ओवरलैपिंग के कारण से बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया। यहाँ पे उनके बीच में सब्सट्रैक्शन हो गया, या तो ऑब्वियसली अपन ऐसे ऐसा कह सकते हैं कि माइनस के सामने प्लस आ गया, ये माइनस है ना, तो इसको हम ऐसा कर दें, तो माइनस के सामने प्लस आ गया और प्लस के सामने माइनस आ गया, नेगेटिव ओवरलैपिंग जैसा हो गया, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बन गया, उनके बीच में एक नोडल प्लेन आ गया। देखिए यहाँ पर नोडल प्लेन नहीं है, लेकिन इसमें एक नोडल प्लेन बीच में आ जाएगा। एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है तो सिग्मा सिग्मा, एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है तो सिग्मा सिग्मा जो है वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स होता है। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में सिग्मा के ऊपर स्टार का साइन आपको देखने को मिलेगा। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जहां भी है यहाँ पर उनके लिए स्टार का साइन यूज किया गया है। तो सिग्मा 2p, अब देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई भी एक ऑर्बिटल ले, एक जो मेन एक्सेस ले लीजिए, और बाकी दोनों जो है पी सबशेल के केसेस में मैंने आपसे कहा था कि कोई एक जो है वो मेन एक्सेस ले लीजिए, तो बाकी जो होंगे वो साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 2pz जो है वो मेन एक्सेस ले लिया है, pz जो है वो मेन एक्सेस ले लिया है, तो pz जो है वो सिग्मा बनाएगा और बाकी सब पाई बनाएंगे। तो देखिए px में किस तरीके से ये साइड वाइज ओवरलैपिंग जिसमें बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है, और ये वाली एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अगेन देयर इज अ नोडल प्लेन डेवलप बिटवीन दीज टू। तो ये इसमें रिपल्सन होता है और इसमें अट्रैक्शन होता है। एक तरीके से ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एडिशन होता है, और यहाँ पर एक दूसरे को अपोज करते हैं तो सब्सट्रैक्शन देखने को मिलता है। इस चीज को बहुत ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो है अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए अगर SS 1s कंबाइन हो रहा है तो सिग्मा 1s बन जाएगा, 2s कंबाइन हो रहा है तो सिग्मा 2s बन जाएगा, 2pz कंबाइन हो रहा है तो सिग्मा 2pz सिग्मा स्टार 2pz बन जाएगा। और अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो रही है तो उस कंडीशंस में सिग्मा पाई 2px और पाई स्टार 2px बन जाएगा। इस तरह से वेरियस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डेवलप हो जाते हैं। यू कैन सी यहाँ पर सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2pz, सिग्मा स्टार 2pz,
पाई 2px, पाई स्टार 2px, इस तरह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, यहाँ एटॉमिक ऑर्बिटल्स और यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डेवलप होते जाते हैं। आई थिंक इट इज वेरी मच क्लियर टू यू नाउ। बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग में रिपल्सन होगा या सब्सट्रैक्शन होगा, बॉन्डिंग में एडिशन होगा, राइट। तो इस तरीके से हम इनके बारे में बात कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, तो जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है या जो डायग्राम बनता है, उसकी हेल्प से हमें ये 5 चीज़ों के बारे में डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट इज स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, सेकेंड इज बॉन्ड ऑर्डर, थर्ड वन इज नेचर ऑफ द बॉन्ड, fourth is bond length, and fifth is magnetic nature. One by one, in each case you will discuss about it also, right? Here we are now the bonding in some homonuclear diatomic molecules. Here we are discussing bonding in molecular orbital theory diagram, MOT diagram for various homoatomic molecule. सबसे पहले अपन बिगिनिंग से स्टार्ट करते हैं। H2 मॉलिक्यूल, जनरल कॉन्फ़िगरेशन H2 मॉलिक्यूल का क्या है? 1s1। हाइड्रोजन के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s1, राइट। सो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के दो एटॉमिक ऑर्बिटल, दो हाइड्रोजन जो हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे। यहां पर एक हाइड्रोजन आप ले लीजिए, इधर पर एक हाइड्रोजन आप ले लीजिए, ये 1s, ये 1s, और दोनों ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर ये लीजिए, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन है ना दोनों में, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s, 1 इलेक्ट्रॉन इन 1s, राइट। मैं हटा देता हूँ, नहीं तो आप बोलेंगे बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, तो उसको पूरी तरह से पहले हटा ही दिया जाए। ओके, सो हियर वी आर, सो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। अब दो ऑर्बिटल मिलके बन रहे हैं, दो ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हो रहा है, सो ऑब्वियसली व्हाट विल हैपन, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, एक जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगी और दूसरी जिसकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। 1s 1s के मिलने से बन रहे हैं, तो एक जिनकी एनर्जी कम होगी वो कहलाएंगे सिग्मा 1s बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक जिसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो कहलाएंगे सिग्मा स्टार 1s। नाउ इट इज वेरी मच क्लियर। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। सिग्मा 1s की एनर्जी कम है, सिग्मा स्टार 1s की एनर्जी ज्यादा है, सो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ रूल दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां भर दिए जाएंगे। सो ये डायग्राम H2 मॉलिक्यूल के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बन जाता है। नाउ सबसे पहले स्टेबिलिटी की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी कैसे होगी। तो हमेशा याद रखिएगा, जब जब बॉन्डिंग, whenever bonding electrons, number of bonding electron, NB मतलब number of bonding electron is higher than number of anti-bonding electron, molecule will be stable. जितना ज्यादा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूल उतना ज्यादा स्टेबल होगा, राइट। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स के नंबर में जितना डिफरेंस होगा, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। एक और चीज इससे रिलेटेड निकाली जाती है, वो कहलाता है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला लिखा जाता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2। सो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हियर यू कैन सी 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इज 0, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, डिवाइडेड बाय 2, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। बॉन्ड ऑर्डर जनरली डिफाइन द number of bond between the atoms. So in this case bond order 1, it means there is one complete bond between two hydrogen atoms. The third important thing that we know with the help of this all information is, third is bond length. So obviously we know bond length is inversely proportional to bond order. तो जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी कम बॉन्ड लेंथ होगी, और जितना कम बॉन्ड लेंथ होगी या जितना कम बॉन्ड लेंथ होगी उतना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा। इसका वाइस वर्सा भी सही होगा, यस और नो। सो बॉन्ड ऑर्डर के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, बॉन्ड लेंथ के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलती है। देन मैग्नेटिक नेचर।
मैग्नेटिक नेचर में दो इंफॉर्मेशन होती, इफ there is an unpaired electron in molecular orbital, if unpaired electron present in molecular orbital, molecule will be paramagnetic, otherwise diamagnetic. So दो कंडीशन हो सकती हैं, एक पैरामैग्नेटिक, if unpaired electron is there in molecular orbitals, not atomic orbitals, molecular orbitals, so molecule will be paramagnetic, otherwise molecule will be diamagnetic, right? So you can see here no electron, no unpaired electron in molecular orbitals. These are molecular orbitals, no unpaired electron in molecular orbitals. So it is very much clear this molecule is diamagnetic. ये कैसा है? Diamagnetic है, पैरामैग्नेटिक नहीं है। ये मॉलिक्यूल कैसा, H2 मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? डायमैग्नेटिक हो जाएगा, राइट। सो हमने वो सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपसे कही थी इसके बारे में हमें पता चलती है। नेचर ऑफ बॉन्ड कैसा होगा, तो नेचर ऑफ बॉन्ड के बारे में जितना ज्यादा हम जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बताते जाते हैं, देखिए अगर कंप्लीट बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्ग होगा, फ्रैक्शनल बॉन्ड है क्या, इसके बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन। तो इट इज कंप्लीट बॉन्ड है ना, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉन्ड की कंप्लीट बॉन्ड है, ये हमें पता चलता है विद द हेल्प ऑफ इट। सेकेंड जो मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं वो मॉलिक्यूल हम बना सकते हैं He2। He का कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2। अगर हम इसके लिए एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना दें तो हमें क्या देखने को मिलेगा? फर्स्ट यहां पर एक 1s ऑर्बिटल, दूसरा यहां पर एक 1s ऑर्बिटल, और दोनों ही ऑर्बिटल के बीच में एक, दोनों ऑर्बिटल के मिलने से एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसमें इनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है और दूसरे की एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा है। दो इलेक्ट्रॉन यहां होंगे, दो इलेक्ट्रॉन यहां होंगे। सो 2 इलेक्ट्रॉन फील्ड हेयर विच इज सिग्मा 1s and 2 electron filled here which is sigma star 1s. This is molecular orbital diagram for He2 molecule. What we can see in this diagram, आप देखें तो स्टेबिलिटी, नंबर ऑफ बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग बराबर है, यानी ये बहुत अनस्टेबल होगा, लगभग मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग दोनों बराबर इलेक्ट्रॉन से 2 - 2 तो 0 हो जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा, मॉलिक्यूल पॉसिबल ही नहीं होगा। सो वी नो कि He जो है वो किसी भी तरह की बॉन्डिंग नहीं करता है, राइट। नाउ in third case let me discuss about bonding in Li2। Li2 में हम बना सकते हैं, लेट्स सी कैसे बनाएंगे। सो Li2 में लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 and 2s1। दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लिथियम SnO। सो इन दैट केस व्हाट वी विल गेट, तो यहां पर अब आपको 1s भी शो करना पड़ेगा और 2s भी शो करना पड़ेगा। तो 1s के दो ऑर्बिटल्स हुए, 1s के दोनों ऑर्बिटल्स ने आपस में कंबाइन किया और कंबाइन होकर एक और 1s एटॉमिक ऑर्बिटल यहां पर, और दोनों ने आपस में मिलकर क्या बना लिया भाई? ये यहां पर 1s2 दो इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये 1s हो गया, 1s2 यहां भी 1s2, और इन्होंने सिग्मा 1s यहाँ और यहाँ सिग्मा स्टार 1s, तो 1s हो गया, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, राइट। नाउ आगे बढ़ते हैं, अब 2s की तरफ आते हैं। तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में एक इलेक्ट्रॉन ही है, तो चलिए बना देते हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे। दोनों ऐड होने पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। सो दिस 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन एंड फॉर्म दिस, एंड यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। सो दिस विल बी सिग्मा 2s एंड दिस विल बी सिग्मा स्टार 2s। ये 2s एंड 2s। सो व्हाट विल बी द कॉन्फ़िगरेशन इज, तो कॉन्फ़िगरेशन हम क्या लिखेंगे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर सिग्मा 2s2, राइट। दिस विल बी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यस और नो। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका बना सकते हैं? Li2 का बना सकते हैं। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और बाकी सारी इंफॉर्मेशन भी हम यहाँ से ले सकते हैं, लाइक स्टेबिलिटी। तो आप देख रहे हैं कि बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, अगर हमसे कंपैरिजन की बात की जाएगी तो हम डिफरेंस के बेस पर भी बता देंगे, राइट।
नाउ बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा भाई? सो बॉन्ड ऑर्डर वी कैन सी नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 and 4, सो 4 minus 2/2, सो दिस विल बी 1, सो बॉन्ड ऑर्डर इज 1। तो अगर हम Li बॉन्ड बनाते हैं तो उनके बीच में एक बॉन्ड होगा। इस तरीके से हम ये भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, यस और नो। और अगर हम देखें बॉन्ड जो यू कैन सी हियर इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स देयर इज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो मॉलिक्यूल विल बी डायमैग्नेटिक, यस और नो। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर बताया जा सकता है। देन नाउ लेट्स सी, तो B2 का भी इसी तरह से बना लेंगे, कार्बन का भी इसी तरह से बना लेंगे, राइट। नाइट्रोजन पे हम बात करते हैं, हम फोकस करते हैं कि नाइट्रोजन, क्योंकि बाकी सबका इसी तरह से बनाते जाता है और कॉन्फ़िगरेशन लिखते जाते हैं। जब हम नाइट्रोजन की बात करते हैं N2 के लिए, लेट्स सी, तो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है 1s2 2s2 2p3, right? So in that case what will happen now? In case of nitrogen, क्या होगा, हम यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो लाइन है ये एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है। तो सबसे पहले 1s2 है हमारे पास, ठीक है भाई, तो 1s2 से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने 1s ले लिया दोनों साइड, और इस तरीके से, तो यहां पर और यहां पर ऑर्बिटल्स हो गए, राइट। ये 1s2 एंड इट इज अगेन 1s2, तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इट इज सिग्मा 1s एंड इट इज सिग्मा स्टार 1s है ना। 2s पर आ जाते हैं ना, 2s पर देखते हैं। 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन में, यस और नो। 2s में भी कॉन्फ़िगरेशन में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो नाइट्रोजन में उसमें भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो 2s इलेक्ट्रॉन्स है तो वापस वैसे ही बना देंगे। यहाँ पर एक ऑर्बिटल और यहाँ पर एक ऑर्बिटल, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, यहाँ पर भी 2, हो जाएगा सिग्मा 2s2 और यहाँ हो जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। तो ये भी हो गया, ये 1s2, ये सिग्मा स्टार, राइट। तो 1s भी हो गया, 2s भी हो गया। अब बारी आती है 2p की, राइट। जनरली जो सिग्मा 2pz है ज़्यादा स्टेबल होता है और उसकी एनर्जी कम होती है। और लेकिन नाइट्रोजन तक के लिए अगर अपन बात करें, स्पेसिफिकली इफ वी आर टॉकिंग अबाउट कार्बन, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रोजन, इन दीज केसेस जो 2pz जो एनर्जी होती है उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, और पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो अदरवाइज 2pz की एनर्जी से कम होती है। आई विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, लेकिन मैं यहाँ पर बताऊं कि सबसे पहले जब आप p के लिए अब बनाने जाएंगे तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो p के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो हम यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक साथ उन्हीं तीनों ऑर्बिटल्स को। p का एक ऑर्बिटल मिलकर सिग्मा बनाता है और बाकी 2 ऑर्बिटल मिलकर पाई बनाते हैं। ये इस बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। तो हमें मतलब इसके अंदर 2 डायग्राम रिप्रेजेंट करने हैं, सिग्मा भी रिप्रेजेंट करने हैं और पाई भी रिप्रेजेंट करने हैं, ये हमें ध्यान रखना है, राइट। तो नाइट्रोजन के केस में जनरली 2p की एनर्जी कम होनी चाहिए बिकॉज इट इज मोर स्टेबल, बॉन्डिंग इज मोर स्टेबल देन एंटी बॉन्डिंग, दैट वी नो वेरी वेल। लेकिन सिग्मा इज मोर स्टेबल देन पाई, दैट वी ऑल्सो नो वेरी वेल। लेकिन थोड़े से कुछ चेंजेस होते हैं, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पर कुछ ये कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें 2 ऑर्बिटल देखने को मिलते हैं एंड दे आर पाई 2px एंड पाई 2py, राइट। और यहाँ पर एक ऑर्बिटल मिलता है जो कि सिग्मा 2pz होता है, सिग्मा 2pz। हेयर अगेन पाई 2px और पाई 2py, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाई 2px और बराबर एनर्जी होती है पाई 2py, लेकिन ये एंटी बॉन्डिंग वाले, तो स्टार लगा होगा। और यहाँ पर एक ऑर्बिटल देखने को मिलता है जो सिग्मा 2pz वाला होता है और उसमें भी एक स्टार लगा होता है। तो ये सिग्मा 2pz और यहाँ पर ये
राइट। इस तरीके से, और हम जानते हैं p के एक एक ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इस तरीके से हम इसकी फिलिंग कर सकते हैं। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन इज देयर, तो ऑफ-बाउ रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले कम एनर्जी वाले हुंड का रूल भी फॉलो होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन पहले दोनों में, फिर एक इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएंगे, 6 ऑलरेडी हो गए, ऊपर के लिए कोई इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं, राइट। कंप्लीट हो गए आपके। नाउ स्टार्ट करते हैं स्टेबिलिटी की बात करें तो हम देखेंगे कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2, 4 और ऊपर 6, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स वी हैव इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, राइट। एंड एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन्स है भाई, तो यहां पर हम देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स इज देयर इन एंटी बॉन्डिंग एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इज देयर इन एंटी बॉन्डिंग, और ऊपर कोई भी इलेक्ट्रॉन, यानी 10 इलेक्ट्रॉन्स, इट मींस 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो बॉन्डिंग में है, 4 यहां पर और 6 यहां पर, 2 नीचे भी 2 और ये 6, तो 10 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में है और 4 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में है। तो इसका मतलब यह है कि डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए N2 की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम इसके लिए बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करने की कोशिश करें तो बॉन्ड ऑर्डर जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, right? So in this case what will happen, bonding electron is 10, anti-bonding electron is 4 divided by 2, so it means it is 6 divided by 2 means 3, so 3 bond order is there, in 3 bond is there, it means bond length जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में होती है वो बहुत छोटी हो जाती है, bond length is very small in case of nitrogen nitrogen atoms, right? आप देख सकते हैं कहीं भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब है मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होगा, स्टेबिलिटी अच्छी होगी, बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होगा, नेचर ऑफ बॉन्ड में हम बता सकते हैं कि बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। ये सारी इंफॉर्मेशन यहां से हमें पता चल जाती है, जो इंफॉर्मेशन हमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में पता नहीं चलती, वो हमें यहां पर इंफॉर्मेशन पता चलती है। जब हम ऑक्सीजन के कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, अगर मैं यहां पर अब O2 के लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी डायग्राम लिखने जाऊं तो उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। तो ऑक्सीजन के लिए हमें क्या मिलेगा, थोड़ा सा मैं क्लियरली बनाने के लिए से थोड़ा नीचे ले लेता हूं। अगेन हम वैसे ही शुरू करेंगे बिकॉज वी हैव कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑक्सीजन एज, ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 1s2 2s2 एंड 2p4, ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, 1s2 2s2 एंड 2p4, राइट। नाउ तो अभी हम इसको कैसे बनाएंगे, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पर हम फटाफट बना लेते हैं 1s के लिए, एक एक ऑर्बिटल होता है 1s का, और इस तरीके से हम बनाते हैं। हर बार मैं केवल आप याद रख सकें इसलिए बना रहा हूँ, नहीं तो डायरेक्ट मैं यहाँ इलेक्ट्रॉन पुट कर देता, राइट। सो 1s2 होता है ना, तो ये 1s हो गया, 1s हो गया, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा इलेक्ट्रॉन, तो ये सिग्मा 1s हो गया, ये सिग्मा स्टार 1s हो गया, राइट। चलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं, अब 2s पर आ जाते हैं। 2s की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा होती है तो 2s पर आ जाते हैं। तो 2s के 2 ऑर्बिटल आपने ले लिए, 2 एटॉमिक ऑर्बिटल आपने ले लिए, दोनों कंबाइन हो गए, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उन्होंने कंबाइन होकर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लिए, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए गए हैं, राइट। यहाँ पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए और दोनों इलेक्ट्रॉन्स पुट कर दिए गए, राइट। तो यहाँ पर भी दोनों, एक इलेक्ट्रॉन ये और दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ पुट कर दिया, तो ये 2s हो गया, ये भी 2s हो गया, ये सिग्मा 2s हो गया, और ये सिग्मा स्टार 2s हो गया। अब हम आ जाते हैं p में। मैंने काफ़ी स्पेस इसीलिए रखा है कि p को हम वापस अच्छे से देख सकें। तो p में हम जानते हैं 4 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, 3 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन 4 हो जाते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, तो ये 2p, और यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन O2 बनाना ना हमें, तो 2 ऑक्सीजन लेने पड़ेंगे, 1 2 3 एंड 4th इलेक्ट्रॉन इज देयर,
1 2 3 एंड फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज देयर। और वी नो कि जो है वो सिग्मा की एनर्जी ज़्यादा होती है, पाई की कम होती है, बॉन्डिंग की एनर्जी कम ज़्यादा होती है, एंटी बॉन्डिंग की कम होती है, तो उसी हिसाब से हम इसे यहाँ भी बनाएंगे। अब यहाँ पर जब हम नाइट्रोजन के बाद बात करते हैं तो सिग्मा 2pz नीचे आ जाता है और पाई जो है पाई 2pz जो कि नाइट्रोजन में नीचे था वो ऊपर रहता है। तो हमें पहले तो ये याद रखना है क्या रहता कैसे, रीजन क्या है, डेफिनेटली वी विल डिस्कस अबाउट इट, लेकिन कैसे रहता है क्या होगा वो जरूर हमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो इस तरीके से हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दिस इज सिग्मा 2pz। आप शायद थोड़ा ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि नाइट्रोजन के केस में 2pz जो है वो थोड़ा ऊपर होता है, ये देखिए, लेकिन और पाई नीचे होता है, पाई 2px और पाई 2py नीचे होता है। लेकिन ऑक्सीजन F2O2 F2 और Ne2 के केस में जो है वो पाई ऊपर चला जाता है। ये पाई 2px और पाई 2py है, दोनों बराबर एनर्जी के होते हैं, तो कई बार ऐसा ही लिखते हैं पाई 2px और पाई 2py। और फिर इसी तरह से यहाँ पर भी पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, राइट, और यहाँ 2py और यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz। ये तो मेरे ख्याल से इसमें कोई इशू नहीं है, राइट। सो यू कैन सी हियर नाउ। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, हुंड रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे और बाउ रूल के अकॉर्डिंग जाएंगे, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिल हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे तो हुंड रूल के अकॉर्डिंग 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, राइट। सो यू कैन सी कि अभी हमें क्या देखने को मिलेगा, अभी हमें क्या देखने को मिलेगा दैट अगर हम देखें तो नाइट्रोजन से रिलेटिवली ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग में। नाइट्रोजन में एंटी बॉन्डिंग में 4th है, लेकिन यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग में देखें तो 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन से कम स्टेबिलिटी होती है, ये बात पता चल गई। बॉन्ड ऑर्डर अगर हम निकालें तो बॉन्ड ऑर्डर में क्या पता चलेगा, बॉन्डिंग में 6 यहाँ पर है, 2 8 यहाँ पर और 2 नीचे और है, तो ये 10, और एंटी बॉन्डिंग में 2 नीचे 2 यहाँ पर और 2 ये, तो 6 डिवाइडेड बाय 2, तो बॉन्ड ऑर्डर हमें कितना मिल गया 2, यानी 2 ऑक्सीजन एटम के बीच में डबल बॉन्ड होता है। और नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, यानी नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ज़्यादा स्टेबल होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल कम स्टेबल होता है। हमारे एटमॉस्फेयर में इतना नाइट्रोजन भरा पड़ा है, लेकिन वो तो उसका यूज तो नहीं होता बर्निंग में, नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का यूज होता है बर्निंग में, राइट। ओके, सो ये कंडीशन हो गई। इसके अलावा एक चीज जो यहाँ पर डिफरेंट मिलती है वो ये कि यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसका मतलब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक होता है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर सिग्मा 2pz2 पाई 2px बराबर पाई 2py, ठीक है, 2 दोनों में इलेक्ट्रॉन्स हो गए। उसके बाद पाई स्टार 2px और बराबर पाई स्टार 2py और दोनों में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो ये इसका कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी तैयार है। अगर हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो कि मैं कई बार आपको बता दे रहा हूँ। तो स्टार्टिंग से ध्यान दीजिएगा, जब हम B2 जो नहीं लिखे मैंने, C2 और N2 और उससे पहले वाले, क्योंकि B2 C2 और N2 के पहले वालों में P का कोई लेना देना नहीं है, तो केवल इन तीनों में या इस नाइट्रोजन और उससे पहले वालों में ध्यान रखें कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, देन पाई 2px बराबर पाई 2py 2 एंड सिग्मा 2pz2, यानी पाई 2px और पाई 2py की एनर्जी कम होगी एज कंपेयर टू सिग्मा 2pz नाइट B2 C2 और N2 में। लेकिन जब हम F2
O2 यानी O2 तो हम बता ही रहे हैं, और F2 में और फिर Ne2 में जब जाएंगे तो हम इस कॉन्फ़िगरेशन को यूज करेंगे। सबसे पहली चीज हम क्या करेंगे वो ध्यान रखिए। अब ऐसा क्यों होता है इस पर बात की जा सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 2s2p मिक्सिंग ऑपरेट होता है इस कंडीशन में। 2s की एनर्जी, देखिए एक बात तो तय है, अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि 2s जो है और 2p एक ही शेल है और उनकी एनर्जी काफी क्लोज होती है। ये है आपका 2s और ये है आपका 2p, तो इनकी एनर्जी जो है वो काफी क्लोज होती है, 2s और 2p की एनर्जी, और इसके कारण से 2s और 2p में मिक्सिंग हो जाती है जब भी मॉलिक्यूल, क्योंकि एनर्जी काफी क्लोज है, हाइब्रिडाइजेशन जैसी मिक्सिंग देखने को मिलती है। और मिक्सिंग का एक कॉन्सेप्ट है कि जिसकी एनर्जी ऑन मिक्सिंग ऑर्बिटल्स हैविंग लेस एनर्जी बिकम्स लोअर, मतलब दैट ऑर्बिटल्स हैविंग लो एनर्जी on mixing energy becomes lower, and those having higher energy या high energy after mixing energy becomes higher। ये कॉन्सेप्ट चलता है जब भी कभी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में मिक्सिंग की जाती है कि जिनकी एनर्जी कम है उनकी और कम हो जाएगी और जिनकी ज्यादा है वो और ज्यादा हो जाती है। क्योंकि आपको शायद अच्छी तरह से याद होगा कि मैंने बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन या मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल के कारण से स्टेबिलिटी और बेहतर होती है। तो इसीलिए जो स्टेबलाइज होते हैं उनकी स्टेबिलिटी और अच्छी हो जाती है, और जो अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि एंटी बॉन्डिंग की बात तो वहां हुई नहीं थी, जो अनस्टेबल होते हैं उनकी एनर्जी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस केस में होता क्या है कि जब 2s2p मिक्सिंग ऑपरेट होती है तो 2s इन दोनों में सिग्मा 2s की एनर्जी कम हो जाती है और सिग्मा स्टार 2s की एनर्जी बढ़ जाती है। इसी तरह से यहां पर देखेंगे जो सिग्मा ये 2p जो है उसकी एनर्जी यहां पर 2p की जो पाई 2px वगैरह है इनकी एनर्जी थोड़ी कम हो जाती है, और जो ये 2pz है इसकी एनर्जी थोड़ी बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही इसमें इलेक्ट्रॉन्स पूरे फिल हो जाते हैं उसके बाद फर्दर 2s2p मिक्सिंग ऑपरेट नहीं होता है, और उस कंडीशन में 2s2p मिक्सिंग जब ऑपरेट नहीं होता है तो फिर आपको कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आइडियल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए 2pz की एनर्जी जो मिनिमम होनी चाहिए वो मिनिमम हो जाती है। तो इस तरीके से कंप्लीट हमें देखने को मिलता है। हमें ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी आपको, क्योंकि इसकी एनर्जी थोड़ी ज्यादा होती है 2pz की, तो मिक्सिंग के कारण थोड़ी और ज्यादा हो जाती है। लेकिन जब ये पूरा फिलिंग हो गया तो उसके बाद फिर 2s2p मिक्सिंग ऑपरेट नहीं होता है, और अल्टीमेटली जब हम उसके आगे के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते हैं। तो रीजन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्लास कॉन्फ़िगरेशन इज 2s2p मिक्सिंग, right? So remember, this is very important concept, molecular orbital theory. I'll discuss some more important point about molecular orbital theory next lecture also, because और बाकी कुछ स्ट्रक्चर और बनाऊंगा, क्लास में भी मैं आपसे पूछूंगा, बट कुछ और स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करूंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा होते जा रहा है, इससे ज़्यादा लंबा होगा वैसे ही बच्चे वीडियो देखते नहीं, और लंबा होगा तो और वीडियो नहीं देखेंगे। Okay, so some part of it is left. We'll discuss that next class. Thank you for today.